हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आपका जो है कक्षा नाइन्थ का जो है सामाजिक विज्ञान का है, यानी सोशल स्टडी का है, जिसमें हमने आपसे वादा किया था कि आपको हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन या 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो उसमें से तीसरा क्वेश्चन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको आपको करना चाहिए और एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको आप याद करके ही जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो एग्जाम में। अगर आपकी इच्छा है अच्छे मार्क्स प्राप्त करने की, तो ये क्वेश्चन को जो है लिखो भी, समझो भी, देखो भी और अंडरस्टैंड अच्छे से कर लो, जो एग्ज़ाम में आपको लगे कि अब आपने जो है अच्छे से प्रिपेयर किया है। अगर क्वेश्चन को नहीं समझिएगा, नहीं अच्छे से याद कीजिएगा, नहीं लिख के देखिएगा, तो शायद आपको लगेगा कि आप अधूरे हो। लेकिन ये 5 क्वेश्चन, अगर 6 क्वेश्चन आप कर लेते हो, तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया हुआ है और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट आपके अंदर रहेगा कि मैंने किया हुआ है क्वेश्चन। और 100% इन्हीं में से क्वेश्चन जो होगा घुमा फिरा के आएगा, लेकिन आएगा इन्हीं क्वेश्चन में से। ठीक है, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लीजिए, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग 5-5 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो एग्जाम व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद आपको प्राप्त नहीं होगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन। और आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है, इसके रिगार्डिंग जो जो चैप्टर हम कर रहे हैं, इसमें हिटलर के बारे में, उसकी पूरी जीवन की जो स्टोरी है, आपको बीए वाले जो सिलेबस में मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके होम पेज से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अधिक बात ना करके हम देखते हैं आज हमारा क्वेश्चन जो है थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आया है थर्ड। What are the peculiar feature of Nazi thinking? That is the most important here. Peculiar feature of Nazi thinking. That is the most important here. The peculiar feature of Nazi thinking are follows. That is the most important here. Nazi is ideology was the same as Hitler is the world view. The Nazi's ideology was to there is a some as a Hitler is a world view. According to this, there was no equality between people, but only a racial hierarchies. And in this view, the is blonded, blue eyes, Nordics, germs, Aryan, where at the top is called to the desirables and will the jobs undesirable. There is job is undesirable. That is the most important, and where place at the lowest is wrong. The Hitler is Russians was the influenced by the thinker like Charles Drawings and Dravens and the Herbert Spencer. Their Nazis agreement was simply there is a strongest race would be survive, there is a big ones would be perishes. There is the most important here. The Hitler believed in there is a living rhizome and the living space. And the new theories have to be conquered to be increase the living space. There is a Hitler is a main aim. The Nazis want to a society of pure and healthy, the Nordics Aryan. It means that is even though is a Germans is who were to see seen as the impure or abnormal had no right to live. Under the is the youth is program their Nazis condemning need to be death many of Germans who were mentally and physically unfit. They are the most important. But as soon as Hitler is come to power, he tried to eliminate the undesirables, and there is a guidepost, and the Nazis proceeded to be rise. There is a murderers, racial idols. There is the most important also. The Zeus is reminded that is a worse is a suffer is a Nazi Germany, and this is called undesirable. The Hitler is a hearted for the jobs was based on the is the pseudo scientifics and theories of the racial. Pseudo scientifics is the theories of the racial which held the is a conservations was no solution. There should be a completely eliminated. There is the most important. And come to the Hindi here. देखिए, इस क्वेश्चन का सिर्फ अर्थ ये है कि नाजी सोच की खासियत क्या थी, जो नाजीलिज्म थे, यानी जो हिटलर था, आखिर उसकी सोच की क्या विशेषता थी, क्या सोच के वो आगे जो है अपना जर्मनी पे जो है प्रभुता स्थापित करने में हर संभव सक्षम हो गया। ठीक है, तो उस समय की स्थिति आपको पता ही होगा, जैसे हम पहले दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल चरमरा सी गई थी, और कहते हैं कि 60 लाख बेरोजगारी होना आम बात नहीं था।
और लोग बहुत ही हताश हो गए थे। तो इस कंडीशन में जो है हिटलर ने उनको ऐसी सोच विचार दिया जिसको उनको मानने के सिवा कोई और चारा नहीं थी। तो यही बात यहाँ आती है कि नाजी सोच की खासियत क्या थी। आखिर नाजीलिज्म में जो व्यक्ति विश्वास करते थे उनकी क्या खासियत थी, क्या हिटलर की सोच थी कि कैसे जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। तो यही बात की विशेषताओं पे जो है हम यहाँ प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिटलर की सोच क्या थी, यानी नाजीलिज्म को मानने वाला हिटलर आखिर किस सोच के साथ आगे बढ़ा। तो नाजी विचारधारा हिटलर के जो है विश्व दृष्टि के समान थी, यानी वो विश्व को अपने व्यू से देख रहा था, पूरा वर्ल्ड को अपने व्यू से देख रहा था और इसके अनुसार लोगों के बीच कोई जो है समानताएं नहीं थी। ठीक है, समानताएं नहीं थी बल्कि केवल एक नस्लीय पदानुक्रम था। यानी जो हिटलर था वो लोगों को एक सामान्य दृष्टि से नहीं देखता था, उसके समक्ष सिर्फ केवल नस्लीय पदानुक्रम था, यानी नस्ल के रिगार्डिंग वो देखा करता था। इस दृष्टि से गोरे नीले आंखों वाले नासिक जर्मन आर्य शीर्ष पर थे, यानी जो थे कहते हैं गोरे थे, नीले थे, आंखों वाले थे, यानी जिनकी ये खासियत थी वो सबसे ऊपर शीर्ष पे थे, जिन्हें वांछनीय कहा जाता था उस समय। जबकि अयहूदियाँ यानी अवांछनीय को सबसे नीचे पैदान पर रखा गया था। यानी आपको पता होगा कि अयहूदी यानी जॉब्स को जो है वो बिल्कुल ही नकार दिया था। आपने नाजीलिज्म के रिगार्डिंग जो है एक स्टोरी भी पढ़ा था, एक नॉवल भी पढ़ा था जो कि एनी फ्रैंक का था। ठीक है, एनी फ्रैंक जो था आपने पढ़ा होगा डायरी ऑफ यंग गर्ल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसमें साफ जो है समझाने के लिए पर्याप्त था कि उस समय नाजीलिज्म में जो था जैब्स को बिल्कुल ही नकार दिया गया था, उनको अनवांछनीय माना गया था और वो जो थे छुप छुप के अपना जीवन व्यतीत करते थे, जिसको एनी फ्रैंक ने साफ शब्दों में अपने लैंग्वेज में छोटे उम्र होते हुए भी उसने इस बात को जो है उजागर करने की कोशिश किया था कि कैसे भेदभाव होता है। अगर आपने नहीं नोवेल पढ़ा है तो पढ़ लेना, जान लेना। वैसा ही कंडीशन यहाँ पर जो है हिटलर का विचारधारा था कि वो सिर्फ आर्यन लोगों को ही प्रायोरिटी देता था, यानी देखा जाए तो जो गोरे थे, नीले थे, नीले आंखों वाले जो है नासिक जर्मनी आर्य शीर्ष पर ही उसने प्रायोरिटी दिया। लेकिन जो यहूदी थे, जो अवांछनीय थे, उनको उसने नीचे पैदान पर रखा। जैसे कि एनी फ्रैंक यानी इस डायरी ऑफ द यंग गर्ल वाली जो आपने स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें साफ इस बात पे जाहिर किया गया था कि उसमें उस समय जॉब्स वाले के साथ कैसे बिहेवियर किया जाता था। हिटलर का जो है नस्लवाद चार्ल्स डार्विन और हेर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों से भी काफ़ी प्रभावित था। नाजी तर्क सरल था, सबसे मजबूत जाति जीवित रहेगी, कमजोर लोग नष्ट हो जाएंगे, इस भेदभाव पे वो आगे चलता था। यानी हिटलर का बिल्कुल यही विचारधारा था कि सबसे मजबूत जाति जीवित रहेगी और कमज़ोर लोग नष्ट हो जाएंगे। जैसे आपने जो है चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के भी रूल में यही बात लिखी गई थी कि जो संघर्ष करेगा, जो आगे बढ़ेगा वही जीवित रहेगा। और यही हिटलर की विचारधारा था कि जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो कमज़ोर होगा वो नष्ट हो जाएगा। यानी देखा जाए तो हिटलर पे जो है चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव था और यही सोच ने उसको जो है वहाँ का जो है सम्राट बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। हिटलर जो है लिबरेशंस या क्या रहने की जगह में विश्वास करता था। यानी वो हिटलर जो था लेबेंसरम्स या रहने की जगह में विश्वास करता था, रहने की जगह बढ़ाने के लिए नए प्रदेशों को जीतना चाहता था। यानी हिटलर का एक ही मंशा था कि जितना हो सके देशों को जीत के जो है अपने देश में मिला के पूरे साम्राज्य की स्थापना करना था। जैसे आप जानते ही हो कि हमारे देश में बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजा आए जो राज्य किया और पूरे देश में जो है अपना प्रचंड लहराया। वही हिटलर का भी महत्व था कि हिटलर भी चाहता था कि हर देश जो है, हर एक कंट्री जो है उसके अंदर रहे। तो इसी विचारधारा से जो पूरे विश्व के साथ उसने जो है द्वितीय विश्व जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हीं कारणों से जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ हिटलर था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा, जानिए समझिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा उसके विचारधाराओं के कारण जो है विश्व युद्ध सेकेंड हुआ। हिटलर का मानना था कि नाजी शुद्ध और स्वच्छ नागरिक आर्य का समाज चाहते थे। यानी नाजीलिज्म का एक ही विचारधारा था कि वो शुद्ध और स्वच्छ नागरिक आर्य का समाज चाहते थे, वो जॉब्स वालों को रहने नहीं देना चाहते थे। इसका अर्थ था कि जिन जर्मनियों को अपवित्र या असामान्य के रूप में देखा जाता था
उन्हें भी जीने कोई अधिकार नहीं था। ये बिल्कुल ही जो हिटलर का विचारधारा था कि जो अपवित्र हैं, जो असामान्य हैं, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये हिटलर का सबसे भयंकर विचारधारा था, जो कि बिल्कुल ही एक क्रूरता की तरफ ले जाता है। कहते हैं इच्छा मृत्यु कार्यक्रम के तहत नाजी ने कई जर्मनों के मौत की सजा दी जो मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य थे। देखिए, ये क्रूरता का सबसे बड़ा परिचालक था हिटलर का नाज़िज्म को मानने वालों के लिए। देखिए, उसने सारे जितने भी कमज़ोर लोग थे, जो मानसिक तौर से बीमार थे, अयोग्य थे, उसको इच्छा मृत्यु यानी स्वयं ही मृत्यु को गोद में सुला दिया था। ये बहुत बड़ी जो है उसकी थिंकिंग थी कि नाजी ने कई जर्मनी को मौत की सज़ा दी और जो मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य थे उनको उसने मरवा दिया। सत्ता में आते हिटलर ने अवांछिताओं को जिप्सी को ख़त्म करने की कोशिश की। नाजियों को अपने जानलेवा नस्लीय आदेश को साकार करना जारी रखा। यानी इसने जैसे ही सत्ता उसको मिला हिटलर को, उसने क्या किया, सभी व्यक्तियों को जो है मौत के घाट उतार दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी यहाँ पर जो है हिटलर का विचारधारा के रूप में, यानी इतने भयंकर विचारधारा रखने वाला हिटलर कैसे जो है वहाँ का शासक बना। देखिए, शासक उस समय स्थिति ऐसे पैदा हो रखा था कि हम वहाँ न चाह के भी इसको लाना वहाँ के लोगों के लिए जो है मजबूरी बन गई थी। क्योंकि आपने जाना ही होगा कि 1929 के आसपास जो आर्थिक संकट थी वो देश को बिल्कुल ही ख़त्म करने के कगार पे था। वो लोग सोचते थे ऐसे ख़त्म होने से अच्छा है किसी से ख़त्म हो जाए तो बेटर रहेगा। तो इसीलिए जो है हिटलर को जो है उन्होंने प्रायोरिटी दिया और हिटलर ने आश्वासन भी दिया कि वो बेरोजगारी को दूर करेगा, यहाँ पर जो है अच्छे से अच्छे शासन लागू करेगा। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का जो सज़ा जर्मनी के लोगों को मिला था उससे वो उबार रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में वो बिल्कुल ही खोखला हो गया था जर्मनी, और इसके उबार सिर्फ हिटलर ही सकता था। क्योंकि कुछ सख्त नियम रेगुलेशन चाहिए था, वो हिटलर के पास में ही था। इसलिए लोगों ने विरोध नहीं किया, उसको ही शासक बना दिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं यहूदी नाजी जर्मनी में सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे। यानी देखा जाए तो नाज़िज्म के जितना सालों तक अपना राज्य रखा, सबसे अधिक पीड़ित जो थे वो सिर्फ एक ही थे, वो थे यहूदी। ठीक है, यहूदी के जो था बिल्कुल ही जो है उन्होंने परेशान और पीड़ित करके रखा था। उन्हें अवांछनीय कहा जाता था और यहूदियों के लिए हिटलर की नफरत नस्ल के छल जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। यानी देखा जाए तो इसकी जो हिटलर की नफरत थी वो नस्ल के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके अनुसार धर्मांतर कोई समाधान नहीं था। यानी कोई व्यक्ति धर्मांतर भी नहीं कर सकता था, धर्म भी नहीं बदल सकता था। क्या हिटलर का मानना था कि धर्म भी बदल लेने के बाद भी वो उसी जाति के थे और उनके बॉडी शरीर में जो है वही खून दौड़ रहा है। तो ये उसका हिटलर का सबसे बड़ी नफरत की एक आग थी। इनका पूरी तरह से सफाया किया जाना चाहिए। यानी नाज़िज्म के अंतर्गत वो हर एक यहूदी को ख़त्म करना चाहता था और हर एक अपवित्र व्यक्ति को ख़त्म करना चाहता था, हर एक मानसिक शारीरिक बीमार व्यक्तियों को जो है ख़त्म कर देना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि ये सिर्फ बोझ होते हैं। तो यही सोच के वजह से जो है यहाँ पर हिटलर जो है कहा जा सकता है कि ये इसकी सोच विचार थी। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हिटलर किस विचार का सोच रखता था, तो आपने जो मैंने समझाया है अगर आप वो भी लिख देते हो तो एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त रहेगा और ये आपके लिए भी ज़रूरी रहेगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो अगला जो है चौथा क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेगा तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके
8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।